بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کہانی پوائنٹ میں خوش آمدید ناظرین۔ آج میں آپ کے لیے دلچسپ اور سنسنی خیز کہانیاں لائی ہوں، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملیں سب سے پہلے۔ جب اندر گئی وہاں بستر ضرور بچھا تھا، مگر اس پر نبیل نہ تھا۔ ادھر ادھر دیکھا، شاید دوسرے کمرے میں ہو۔ ابھی میں جائزہ لے ہی رہی تھی کہ دروازہ بند کرنے کی آواز آئی۔ وہ شخص جو مجھے لایا تھا دروازہ بند کر چکا تھا۔ اتنے میں دوسرے کمرے سے 2 اور آدمی بھی آ گئے، مگر ان میں کوئی بھی نبیل نہ تھا۔ میں نے پوچھا، نبیل کہاں ہے؟ ان میں سے ایک بولا، اسے بھول جاؤ، وہ دریا میں ڈوب چکا ہے، اب ہم ہیں تمہارے نبیل۔ اپنی بدنامی کا صحرا میرے ہی سر ہے۔ نہ میں نادانی میں محبت کرتی اور نہ اپنا سب کچھ لٹا کر اپنی زندگی برباد کرتی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب کافی دنوں سے ہمارے گھر کے سامنے والا مکان خالی تھا اور مالک مکان کسی مختصر فیملی کی تلاش میں تھا۔ جلد ہی اس کو کوئی کرایہ دار مل گیا۔ یہ کرایہ دار نبیل نامی نوجوان لڑکا تھا۔ وہ نزدیکی گاؤں سے شہر پڑھنے کے لیے آیا تھا۔ وہ سارا دن باہر رہتا اور رات کو گھر آ کر پڑھائی میں مشغول ہو جاتا۔ جلد ہی پاس پڑوس والوں نے محسوس کیا کہ اس کی صحت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ جب وہ گاؤں سے آیا تھا سرخ و سفید اور صحت مند تھا، بعد میں رنگت پیلی پڑنے لگی اور دبلا بھی ہوتا گیا۔ ایک روز والد صاحب کو گلی میں ملا۔ انہوں نے پوچھا، نبیل بیٹے، تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیا شہر کا پانی راس نہیں آیا جو روز بروز کمزور ہوتے جا رہے ہو؟ انکل، دراصل میں صبح شام ہوٹل سے کھانا لے کر کھاتا ہوں، جبکہ باہر کے کھانے کی عادت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیٹ خراب رہتا ہے۔ والد صاحب بولے، اگر تم چاہو تو کھانا ہمارے گھر سے کھا لیا کرو۔ اسٹوڈنٹس کا بھی معاشرے میں حق ہوتا ہے۔ کھانا تو ویسے بھی روز ہی پکتا ہے، ایک آدمی کا اس میں سے نکل جائے تو کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ ٹھیک ہے انکل، جب ضرورت ہوئی تو بتا دوں گا۔ اس گفتگو کے اگلے روز ہی معلوم ہوا کہ نبیل اسپتال میں داخل ہے۔ کسی غیر معیاری ہوٹل سے کھانا کھایا تو فوڈ پوائزننگ ہو گئی۔ کالج میں طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ کالج والے ہی ہسپتال لے گئے۔ چپراسی کو پیغام دے کر نبیل نے ہمارے گھر بھجوایا تھا کہ میں فلاں اسپتال میں داخل ہوں، میرے گھر سے اگر کوئی آ جائے تو ان کو بتا دیجیے گا۔ شاید انہی دنوں اس کے گھر سے اس کا بھائی یا کوئی رشتہ دار آنے والا تھا، تبھی اس نے یہ پیغام میرے والد کو بھجوایا تھا۔ والد صاحب نبیل کی عیادت کو اسپتال گئے۔ وہ وہاں 5 دن داخل رہا۔ اس دن کے بعد سے اس کے لیے ایک ٹائم کا کھانا ہمارے گھر سے جاتا۔ جب وہ کالج سے آ جاتا تو بیل بجا دیتا، ملازم اس کو کھانا دے کر آتے۔ نبیل نے بہت اصرار کیا کہ وہ کھانے کی رقم ہر ماہ ادا کیا کرے گا، لیکن والد صاحب نے منع کر دیا کہ کوئی بات نہیں، ہمسایوں کا بھی حق ہوتا ہے۔ کچھ دن بعد ہمارا ملازم چھٹی پر چلا گیا۔ والد صاحب تو دکان پر ہوتے تھے، لہٰذا اب نبیل کو کھانا پہنچانے کا مسئلہ تھا۔ میرا بھائی دبئی میں تھا اور گھر میں ایک چھوٹی بہن تھی جو مجھ سے صرف 2 سال چھوٹی تھی۔ اس نے صاف منع کر دیا کہ وہ کھانا پہنچانے نبیل کے گھر نہیں جائے گی، اور والدہ نہیں چاہتی تھی کہ نبیل روزانہ ہمارے گھر میں کھانا کھانے آئے، کیونکہ اس طرح لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع مل جاتا ہے۔ اب اس کا یہی حل تھا کہ جب وہ کالج سے آتا بیل دے کر دروازے پر کھڑا رہتا اور کھانا لے کر اپنے گھر چلا جاتا۔ کھانا کھانے کے بعد دوبارہ برتن دینے آتا، بیل دیتا اور ہم برتن لے لیتے۔ بظاہر یہ آسان کام مگر خاصا مشکل تھا۔ کبھی امی فارغ نہ ہوتی تو یہ فرض مجھے ہی انجام دینا پڑتا تھا۔ ایک روز وہ کھانا لینے نہ آیا اور اگلے روز بھی نہیں آیا۔ امی برقع اوڑھ کر اس کے دروازے پر گئیں، بیل دی۔ وہ باہر آیا تو پوچھا، بیٹا کھانا کیوں نہیں لے رہے؟ کہنے لگا، خالہ جی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بخار آ رہا ہے اور میری کچھ اور طبیعت بھی ٹھیک نہیں۔ اچھا بیٹا، تو میں کھچڑی بنوا کر بھیج دیتی ہوں۔ امی نے مجھ سے کہا کہ کھچڑی بنا دو۔ میں نے کھچڑی تیار کر لی تو خالہ کا فون آ گیا کہ ان کے شوہر کی طبیعت خراب ہے اور ان کو اسپتال لے گئے ہیں۔
फ़ौरन आ जाओ। वालदा ने बुरखा सर पर डाला और खाला के घर की जानिब निकल गईं। इनको ये भी याद न रहा कि नबील को खिचड़ी देनी है। काफ़ी सोच विचार के बाद बिल आखिर मैंने हिम्मत की, चादर लपेटकर खिचड़ी लेकर इसके दरवाजे पर पहुंची। बैल दी, कोई जवाब नहीं आया। सोचा शायद नबील की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, सो हिम्मत करके इसके घर के अंदर चली जाती हूँ। क्योंकि दरवाज़ा खुला हुआ था, दबे कदमों डरती डरती आगे बढ़ी। वो कमरे में ना था। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ सुनाई दी। खिचड़ी इसके कमरे में पड़ी टेबल पर रखकर मैं उल्टे कदमों पलटी तो वॉशरूम से निकल आया। कहने लगा, आपको सहमत करना पड़ी, शुक्रिया। मैंने कहा, कोई बात नहीं, अम्मा को खाला के यहाँ जाना पड़ गया था, तभी मैं आ गई। अच्छा, बर्तन लेती जाए। इसने प्लेट में खिचड़ी निकाली, बर्तन खाली कर दिए। मैंने बर्तन उठाए और घर को आ गई। इस पहली जुर्रत के बाद मेरी झिझक ख़त्म हो गई। अब जब भी मैं फारिग होती दरवाजे से झांकती। अगर कोई गली में इधर उधर ना होता तो तेज़ी से इसके घर के अंदर चली जाती और खाना देकर आ जाती। शुरू में हम सलाम दुआ के सिवा और कोई बात ना करते थे। रफ्ता रफ्ता हिजाब कम होने लगा और मैं ठहर कर इसके साथ थोड़ी देर कोई इधर उधर की बातें कर लिया करती थी। अभी तक महल्ले वालों को इल्म न था कि मैं इससे खाना पहुंचाती हूँ। एक रोज़ बदकिस्मती से महल्ले की एक औरत ने मुझको नबील के घर से निकलते देख लिया। बस फिर क्या था, बात मुंह से निकली और कोठों चढ़ गई। वो एक लगाई बुझाई करने वाली औरत थी। हर तरफ इसकी बात को फैला दिया और यूं सारे महल्ले में बदनाम हो गई। माँ ने स्कूल से उठा लिया और इस डर से घर से मेरा बाहर निकलना बंद कर दिया कि कहीं इस मामले की खबर मेरे वालिद को ना हो जाए। अब तक तो हमारे दरमियान कोई ऐसा वैसा मामला नहीं था, लेकिन पाबंदी लगी तो न जाने क्यों दिल को बेकरारी रहने लगी। महसूस हुआ कि मेरे दिल में इसकी जगह थी, जो अब इसकी जुदाई मुझे तड़पाने लगी थी। इंसान पर पाबंदियां लग जाएं तो कर्ब की शिद्दत में दो चंद हो जाती है। अब मैं इससे मिलने की नई नई तरकीबें सोचने लगी। एक बार खत लिखकर इसके घर के अंदर फेंक दिया, जिसमें लिखा था कि गली में निकलकर अपनी सूरत दिखा दिया करो, कहीं तो पल भर के लिए मिलो। इसने इस खत का कोई जवाब ना दिया। मुझे और ज़्यादा बेकरारी लगी। एक और खत लिखकर दरवाजे से झांका, देखा कि गली में कोई नहीं है तो तेज़ कदमों से इसके घर की तरफ गई। इसके मकान की दो खिड़कियां जो सहन में खुलती थीं वो खुली हुई थी। हाथ आगे करके खत सहन में फेंककर उल्टे कदमों घर में घुस आई। अब नबील को यकीन हो गया था कि जब तक वो मुझे जवाब न देगा मैं इसी तरह अहमकाना हरकतें करती रहूँगी। सो अगले रोज़ इसने दोपहर के बाद हमारी बेल बजाई। अम्मी नमाज़ पढ़ रही थी। मेरी छठी हिस्स ने कहा, हो न हो ये नबील ही है। दबे कदमों दरवाजे पर पहुंची, झांका तो वही था। कहने लगा, मेरे मकान में मेरे कॉलेज के दोस्त और क्लास फेलो भी आ जाते हैं, लिहाजा अब तुम मेरे घर में मत आना। तो फिर गली में ही मेरी बात सुन लो। आखिर तुमने मुझसे क्या बात करनी है, अभी कह दो। अभी अपा के आने का वक्त हो रहा है, वो अचानक आ गए तो तुम मुझसे दरिया पर मिलो। मेरी सहेली का घर वहाँ करीब है, मैं इसके घर का कहकर जाऊँगी। दिन को तो मुझे पढ़ाई करना होती है, कल से इम्तिहान शुरू है। अच्छा तो फिर रात को मिल लो। रात को इसने हैरानी से कहा, हाँ, दरिया 4 कदम पर तो है। रात को अम्मी अब्बा जल्दी सो जाते हैं, मैं अंधेरे में निकलकर दरिया पर आ जाऊंगी। देखो रात ज़रूर आना, ऐसा ना हो कि तुम ना आओ। मैं वहाँ तुम्हारे इंतज़ार में रात भर बैठी रह जाऊंगी। ऐसा कहकर मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। अब नबील के पास इसके सिवा चारा ना रह गया कि वो रात को दरिया किनारे जाकर बैठ जाए और मेरा इंतज़ार करे। इत्तेफाक के इस रोज़ अम्मा और अब्बा देर तक बातें करते रहे और कहीं 12 बजे तक सोए। जो ही वो सोए मैंने दबे कदमों सहन अबूर किया और आहिस्ता से कुंडी खोलकर गली में झांका। आसमान पर सितारों की मध्यम रोशनी थी। गली सुनसान थी और वहाँ दूर दूर तक कोई न था। जाने दिल की गली का क्या और ही जज्बा होता है कि इंसान ना आंधी देखता है और ना तूफान। इंसानों का खौफ रहता है और ना ही भूत प्रेत का डर होता है। तेज़ तेज़ कदम उठाती तकरीबन 7 मिनट में दरिया किनारे पहुंची। अगरचा मुझे आने में देर हो गई थी, मगर यकीन था कि वो वहाँ ज़रूर होगा। हज़ारों वसवसों का खौफ दिल पर उठाए जब मैं दरिया तक पहुंची तो देखा
کہ وہ वहाँ ना था। थोड़ा सा और आगे बढ़ी तो कोई बैठा नजर आया। मैं समझी नबील है, जो मेरा इंतज़ार कर रहा है। जब ज़रा और आगे बढ़ी तो क्या देखा कि वहाँ वो तो नहीं, कोई और ही बैठा है। मैं डरकर वापस पीछे पलटी तो वो बोला, डरो नहीं बहना, मुझे नबील ने भेजा है। इसको सख्त बुखार है, वो मेरे घर में लेटा है, तुमको बुला रहा है। मैंने कहा, रात आधी हो चुकी है, अब तुम्हारे घर गई तो वापस अपने घर कब पहुंचूंगी? मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं है, आप आ गई हो तो इसकी बात सुन लो। ये लो, इसने पर्चा लिखकर मुझे दिया है, खुद पढ़ लो अगर मेरी बात का यकीन नहीं है तो। इसने जेब से टॉर्च निकाली और पर्चे पर डाली। मैंने पढ़ा, लिखा था मुझको शदीद बुखार है, 2 घड़ी देखने को आ जाओ। अंदाज तहरीर इसका था। मैं इसकी तकलीफ़ का सोचकर तड़प उठी। बगैर सोचे समझे इसके दोस्त के पीछे पीछे चल दी। ज़रा आगे आई तो स्कूटर नज़र आया। वो बोला, इस पर बैठ जाओ, बस 2 मिनट में पहुंच जाएंगे, तुमको वापस भी इसी सवारी पर ले आऊँगा। न जाने किधर किस रास्ते पर वो मुझे ले जा रहा था। इस वक्त मेरी मत मारी गई थी कि नबील के बुखार का सुनकर इसके पीछे चल दी। हालांकि मुझे वापस घर को पलट जाना चाहिए था। नबील की सोचों में ऐसी डूबी हुई थी कि अंदाज़ा ना हुआ कि कितनी दूर चली आई हूँ। जब एक मकान के सामने स्कूटर रुक कर उसने उतरने को कहा तो मुझे होश आया। अब मैं कली तौर पर इसके रहमो करम पर थी। मकान के अंदर पहला कदम रखते ही दिल ने कहा कि तुमने यहाँ आकर बड़ी गलती की है। धड़कते दिल के साथ आधी रात को मैं एक अनजाने घर में दाखिल हुई। तसव्वुर में नबील का प्यारा चेहरा था और कुछ सोच न थी। जब अंदर गई वहाँ बिस्तर ज़रूर बिछा था, मगर इस पर नबील न था। इधर उधर देखा, शायद दूसरे कमरे में हो। अभी मैं जायज़ा ले रही थी कि दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ आई। वो शख्स जो मुझे लाया था दरवाज़ा बंद कर चुका था। इतने में दूसरे कमरे से 2 आदमी और आ गए, मगर इनमें कोई नबील न था। मैंने पूछा, नबील कहाँ है? इनमें से एक बोला, उसे भूल जाओ, वो दरिया में डूब चुका है, अब हम ही तुम्हारे नबील हैं। इसके बाद क्या कहूँ? कलम तो खून के आंसू में डुबोकर लाखों तो सारे बदन का लहू काम आ जाएगा। मैं कितनी बेबस लड़की, और ये इंसान नुमा दरिंदे जो कदम बिना सोचे समझे उठाया, वो मुझे किस राह तक ले आया। रात सर पर से ऐसे गुजरी जैसे डायन हो। हजारों गिद्ध और चीलें चिल्लाती हुई कानों में महसूस हो रही थी। सुबह हुई भी तो कितनी सिहाइयाँ सिमट कर मेरे दामन में ले आईं। उजाला तो फिर हुआ ही नहीं। मैंने अगर एक गलती कर ली थी तो दूसरी नहीं करनी थी, मगर अगली सबसे बड़ी गलती ये थी कि अब्बा के खौफ से सुबह घर पहुंचने की कोई तदबीर ना की। हालांकि मैं चाहती थी सुबह घर चली जाती, जो होता सो होता। बाबुल की छत से तो ना जाती, मगर मैं तो वहीं बैठी रोती रही। नबील को कोसती रही कि इसने ये सब कुछ मेरे साथ जानबूझकर किया था, या वो खुद किसी का शिकार हो गया था। भोलेपन से अपने किसी दोस्त को अपना राजदार बनाकर इनको मौका फराम किया था। ये अकीदा तो कभी खुल ही नहीं सका। घर जाती तो ये अकीदा खुलता, लेकिन घर किस मुंह से जाती? मेरी हालत मेरी बर्बादी का नोहा थी। भला कौन मुझे कबूल करता? शायद अब्बा जान मुझे देखते ही मार देते। दोपहर तक मैं रोती रही। वो लोग घर को ताला लगाकर चले गए। मैंने आस पड़ोस में झांका और ना शोर मचाया। यही जी चाहा कि अपनी बदनामी का सहरा गाने से बेहतर है कि यहीं प्यासी दफन हो जाऊं। शाम को वो लोग आ गए। कहा कि यहाँ रुकना ठीक नहीं, किसी ने पुलिस को इत्तला कर दी है। इनके हत्थे चढ़ गए तो अखबारों में तस्वीरें आ जाएंगी, बेहतर है कि निकल चलो। इन्होंने ना तो मुझे नबील तक पहुँचाया और ना मेरे घर तक, बल्कि एक कार में लाहौर ले आए और यहाँ शाही महल्ले में एक औरत के घर पर छोड़कर चले गए। इस औरत ने मुझे दिलासा दिया। वो कहती थी कि मुझे माँ समझो, मगर माँ नहीं, माँ के नाम पर थप्पा थी। वो मुझे चमन कहकर मुतारिफ कराती थी। ना जाने कब तक ये चमन इस गंदी जगह पर बिकती कि एक रोज़ एक शख्स जो वहाँ अपना दिल खुश करने आया था, मैंने इसे अपना किस्सा सुनाकर इल्तिजा की कि मुझे मेरे वालिदैन तक पहुँचा दो। बेशक वो मुझे मार देंगे, इस जगह रहने से तो अच्छा है बाप के हाथों मर जाना बेहतर है।
اس آدمی کو ترس آیا اور اس نے مجھے میرے گھر تک پہنچا دیا۔ وہاں سب بدل چکا تھا۔ ماں میری یاد میں رو رو کر اندھی ہو چکی تھی۔ باپ یہ بے عزتی نہ سہ سکا اور اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ بھائی نے دروازہ تو کھولا لیکن کوئی بھی تعلق رکھنے سے انکار کر دیا۔ وہی آدمی مجھے واپس اپنے ساتھ لے آیا، مجھ سے نکاح کیا اور میں اب اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ پر زندگی میں ایک غلطی مجھے وہاں لے گئی جہاں صرف دلدل ہی دلدل تھی۔ مجھے میرے شوہر نے کوئی بھی طعنہ نہیں دیا، لیکن ہر دم یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ یہ میرا آخری ٹھکانہ ہے بھی کہ نہیں، کہ یہ میرا آخری ٹھکانہ ہے بھی کہ نہیں۔